नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हमने जो पीछे की वीडियो में जो कवरअप किया है वो कवरअप किया है हमने केमिकल इक्वेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवरअप करने जा रहे हैं वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन. So how can we determine that particular equation is a balanced equation or unbalanced equation? So इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए when जो कोई भी इक्वेशन होती है तो वो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज अ लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन एंड सेकंड इज अ राइट हैंड साइड पोर्शन. So this is a left hand side portion and this is a right hand side portion. Okay. So when atomic mass of left hand side atoms and atomic mass of right hand side atoms are equal, then we say that balance is the equation is a balanced chemical equation. And if the atomic mass of left hand side atoms and atomic mass of right hand side atoms are not equal, then we say that particular equation is a unbalanced chemical equation or skeleton chemical equation. Okay, now I think you understand about this. If you do not understand, if you do not understand this, you can repeat the video and listen again. Okay, so now you can understand. Now मैंने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझा दिया. अब आगे देखते हैं रीड करके कि इसमें क्या लिखा है. ये किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? So the law of conservation of mass is mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. This is the law of conservation of mass. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical equation. That is the total mass of elements present in the product of chemical reaction. So it means if mass can neither be created and nor be destroyed in a chemical reaction, so what's happened? Then mass before the reactions and after the reactions of equation must be equal. If the mass of atoms before the reactions and after the reactions of atoms are equal, then we say that the equation is a balanced chemical equation. And if the mass before the reaction and after the reactions are not equal of the atoms, then we say equation is a unbalanced chemical equation. So now that is the total mass of element present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element, the number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reactions. Yes. So number of atoms of each elements means वो एलिमेंट्स जो उस केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सभी एलिमेंट्स. तो हमें जो भी एलिमेंट उस केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स का हमें क्या देखना होगा? मास देखना होगा. और वो मास हमें कंपैरिजन करना होगा लेफ्ट हैंड साइड एटम्स का राइट हैंड साइड एटम्स के मास के साथ हमें वो कंपैरिजन करना होगा. और जब ये कंपैरिजन बिल्कुल आपका इक्वल हो तब आप उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहेंगे. We need to balance a skeleton chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balanced? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as.
So now zinc sulfuric acid. So this is a zinc sulfuric acid. This activity is a 1.3, which I understand, which you understand earlier. So activity 1.3, where the zinc granules react with a dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid, zinc granules. When zinc granules react with a dilute sulfuric acid, then zinc sulfate and hydrogen gas and plus heat is released. That's why I also told you that in a previous class that when a heat is released in a particular equation, that type of equation is also called exothermic reaction. सो एक्टिविटी 1.3 में जो भी चीज थी, जो इक्वेशन थी, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी. यही इक्वेशन देखो यहां पर बताई गई है. जिंक ग्रेनुल्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यह सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. तो जिंक सल्फेट बना एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई एंड प्लस आप इसमें ऐड कर सकते हो आपकी हीट. तो हीट भी आपकी इसमें इवॉल्व हुई है. तो हीट भी आपकी इसमें इवॉल्व हुई है, तो आप इसमें हीट भी दिखा सकते हो. और इसमें देखो हीट भी आपकी इवॉल्व हुई है, तो टेम्परेचर में भी फर्क पड़ा है, टेम्परेचर रेज हुआ है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है. तो आप इस एग्जांपल्स को डाल सकते हो इवोल्यूशन ऑफ गैस में एंड रेज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में. ठीक है, इस इक्वेशन को आप डाल सकते हो. एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इस चीज को ध्यान रखना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है. अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं. तो हम देखो कैसे कंपैरिजन करेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं. तो देखो सबसे पहले देखेंगे जिंक को. ये जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे है. ठीक है, तो जिंक लिखेंगे यहाँ पर, जिंक लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर ये 1 एटम है इसका, क्योंकि देखो यहाँ पर जिंक का केवल एक ही एटम है. जिंक के नीचे 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, 4 नहीं लिखा, जैसे H2 के नीचे लिखा, वैसे जिंक के नीचे कुछ नहीं लिखा. तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि जिंक के नीचे 1 लिखा है. ओके, नाउ सेकेंड एटम इज ओके, एंड जिंक को दूसरी साइड भी आपने देखना है कितना लिखा है जिंक. तो जिंक दूसरी साइड भी 1 ही लिखा है. ओके, तो जिंक दूसरी साइड भी 1 ही लिखा है राइट हैंड साइड के साथ में, तो यहाँ पर भी आपने लिखा 1. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट अदर एलिमेंट. तो जब हम अदर एलिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट अदर एलिमेंट है हाइड्रोजन. आपने पूरा नहीं लेना है, सिंगल एलिमेंट लेना. तो ये है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को जब आप कंसीडर करते हो लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसका आइटम है 2, यानी 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के. और आपके राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं आपके हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड में. नाउ नेक्स्ट एटम कंसीडर करते हैं. तो नेक्स्ट एटम है आपका सल्फर. सल्फर अलग है, तो सल्फर को कंसीडर करेंगे आप. तो सल्फर का सिंगल एटम है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, और सल्फर का आपका सिंगल एटम है राइट हैंड साइड पे. ओके, तो राइट हैंड साइड पे इसका सिंगल एटम है. उसके बाद आप कंसीडर करेंगे नेक्स्ट एटम को, एंड नेक्स्ट एटम इज अ ऑक्सीजन. तो जब आप ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पर 4 एटम्स हैं एंड राइट हैंड साइड पे भी आपके 4 एटम्स हैं. 1 मिनट आपको रुकना होगा, लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है, तो मैं इसे एक बार चार्ज में लगाता हूँ. बस 2 सेकेंड आप वेट कीजिए. ओके, स्टार्ट करते हैं अगेन. तो आपने देखा कि दोनों तरफ जो एटम्स थे उनके जो एटॉमिक नंबर को जब हमने कंपैरिजन करा तो सेम थे. देखो जिंक का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर के 1 एटम्स थे, एंड आपके ऑक्सीजन के 4 एटम्स थे. तो सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है. दैट्स व्हाई this equation is a balanced equation. Okay, या balanced chemical equation. Now next equation,
कंसिडर करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को। देखो अब आप वैसे ही समझ जाओ खुद, यहाँ पर एफ ई कितना लिखा है 1, कुछ नहीं है तो एफ ई 1 है, और यहाँ पर एफ ई के आगे नीचे देखो कितना लिखा है 3। तो ऑब्वियसली बात है ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ई 1 है, इट मीन्स आयरन का 1 एटम है, और राइट हैंड साइड पे आयरन के 3 एटम्स हैं, इसीलिए आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं राइट हैंड साइड पे, इसीलिए भी कह सकते हो आप ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, आपने उस इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो बैलेंस इक्वेशन का जो पार्ट होता है, अनबैलेंस को बैलेंस करने वाला, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी 11 मिनट्स का हो चुका है। तो मैं इसमें बस बेसिक चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में देख लेता हूँ, अगर कुछ होती हैं तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ही मेरे को लगता है इसको कवर अप करना ठीक रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कवर अप करूंगा कि किस तरीके से आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसमें शेयर एंड लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके।